میرے بھائیوں، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پستا ہے۔ یا اللہ، میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی بتایا، یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ، میریوں نے ایک نہیں سنی، ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، دو جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا۔ اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو، اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل۔ عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پست ویسے وہ پست۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان ووجاہتا بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ، تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاؤٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سور الو یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج تو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے۔ ایم این اے گالی بن گیا ہے، ایم پی اے گالی بن گئے ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں۔ باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے، آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا،
अल्लाह को पाले, जमीन उसकी है, खजाने तेरा नसीब बन जाएगा। अल्लाह को पाले, जन्नत उसकी है, रजा तेरा नसीब बन जाएगा। अल्लाह को अपना बना ले, जहन्नम उसकी है, आग तुझ पे हराम हो जाएगी। अल्लाह को अपना बना ले, मोहब्बत उसका इरादा है, वो दिलों में उतार देगा। अल्लाह को अपना बना ले, नफरत उसका इरादा है, वो दिलों से खींच के निकाल देगा। अल्लाह को अपना बना ले, उल्फत उसका इरादा है, वो दिलों को जोड़ देगा। अल्लाह को अपना बना ले, हिफाजत उसका इरादा है, वो हफीज बन के दिखा देगा। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, रज़्ज़ाक़ उसका नाम है, रिज़्क़ उसका इरादा है। हवाओं के कंधों पे चढ़कर रिज़्क़ आएगा, जमीन अपने पेट से रिज़्क़ निकालेगी, आसमान अपनी बुलंदियों से रिज़्क़ उतारेगा। कायनात का चप्पा चप्पा तुम्हें रिज़्क़ देने के लिए मुकर्रर हो जाएगा। अल्लाह को अपना बना लो, जमीन भी तुम्हारी, आसमान भी तुम्हारा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर कह रहे हैं, जुमे की तकरीर करते हुए, या सारिया तो अल जबल, ए सारिया, पहाड़ पहाड़ पहाड़। जब नमाज से उतरे, मिंबर से उतरे, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, ये क्या कह रहे थे जुमे के खुतबे में? या सारिया तो अल जबल। सारिया बलूचिस्तान के पास बंदर अब्बास एक जगह है, जंग हो रही है। सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शिकस्त हो चुकी है, मुसलमानों के कदम उखड़ चुके हैं। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, मुझे नजर आया कि सारिया के फौज के कदम उखड़ गए। आगे मुझे एक पहाड़ नजर आया, तो मेरे जी में आया, अगर सारिया का लश्कर पहाड़ पर पहुंचकर पलट के हमला करे और पहाड़ को अपनी पुश्त में कर ले तो फिर फतह हो सकती है। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, या सारिया तो अल जबल। एक महीने के बाद खबर आई, हजरत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कासिर भेजा कि हम ईरानियों से टकराए, हमारे कदम उखड़ गए, कि हमने आवाज सुनी हवा में। मोबाइल की जरूरत नहीं है, फैक्स की जरूरत नहीं है, टेलेक्स की जरूरत नहीं है, फोन नहीं है, हवा गुलाम है। ये हवा तुम्हें मोबाइल के जरिए से पैगाम सुनाती है। उमर अल्लाह का गुलाम बना, हवा उसकी गुलाम बन गई। और हमने आवाज सुनी, ऐ सारिया, पहाड़ को ऊँट में, पहाड़ को पुश्त पे लेकर पलट के हमला कर। तो हमने पहाड़ तक भागे, फिर हमने पलट के जो हमला किया तो अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमा दी। ये अल्लाह के बन जाना, ये अल्लाह का बन जाना, यूं गैबी निजाम तुम्हारे ताबे कर देता है। हजरत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मु साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा मर गया। ये ताजा हिजरत करके मुसलमान होके मदीने में आई हैं। उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ने लगे। तो आपने कहा उसकी माँ को तो बुलाओ, अपने बच्चे को देख ले। उसको पता भी नहीं था, वो असहाबे सुफ़ा में से थे, वहाँ उनका इंतकाल हुआ। उनकी माँ को पता चला मेरा बच्चा मर गया है। वो आई और मैयत के पाँव की तरफ बैठकर चारपाई को पकड़ा। अल्लाह के नबी से नहीं कहा मेरे लिए दुआ कर या रसूल अल्लाह, खुद अपने अल्लाह से बात की, ए रब आमनतु बिका तौआ व हाजरतु इलैका रग़बा फला तुशमित बिल आफियल आदा। मेरे मौला, मैंने तेरी मोहब्बत में तेरा कलमा पढ़ा, तेरे और तेरे रसूल के इश्क में मैंने अपना घर छोड़ा। आते मेरा बच्चा मर गया, सारा कबीला मुझे ताना देगा। देखा बाप दादे का दीन छोड़ के मजा चख लिया, बेटा मरवा लिया। ऐ मेरे रब, मुझे ये ताने सुनने की ताकत नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। हजरत अनस फरमाते हैं, उसकी माँ के अल्फाज पूरे ही हुए थे कि उस नौजवान ने खुद कफन अपने चेहरे से हटाया, खुद अपने हाथों से कफन हटाया और उठ के बैठकर हमारे साथ उसने बैठ के खाना खाया। जब अल्लाह साथ होता है तो यूं गैबी निजाम साथ चलते हैं। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, फिर घरों में भी बरकतें। एक सहाबी घर में तशरीफ लाए, बीवी से पूछा खाने को कुछ है? का कुछ नहीं। तो वो परेशान होकर घर से बाहर चले गए। उनकी बीवी ने तंदूर में लकड़ी डाल दी कि धुआं उठे और पड़ोस को पता चले कि घर में फाका नहीं है, रोटी पकने वाली है। तंदूर में लकड़ी डाल रही है और एक दाना नहीं है रोटी आटा गूंद के रोटी पकाने के लिए, एक दाना घर में नहीं है। और उसने लकड़ी तंदूर में डाल के जला दिया। चले अल्लाह, हम भूखे हैं, हमें खाना खिला। और अंदर आकर खाली चक्की चलानी शुरू कर दी, खाली, ताकि चक्की चलने की आवाज से पड़ोस को पता चले कि आटा भी पिंदी पई है। तो तंदूर भी ताई खलोती है, तो रोटियां भी ला ली सी, अपने फाके को यूं छुपाया। इतने में खामिन ने दरवाजे पर दस्तक दी, ये उठकर बाहर गई हैं दरवाजा खोलने। जब वापस आई हैं तो तंदूर से खुशबू
जब तंदूर में देखा तो तंदूर रोटियों से भरा हुआ और उसमें पूरी बकरे की रान भुनी हुई मौजूद। जब कमरे में दाखिल हुई है तो चक्की में से आटा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ये हैरान परेशान है, ये आटा किथों आई जाता है। हामिद ने घबरा के चक्की को उठाया तो कुछ भी नहीं, अंदर खाली चक्की है। वो गए दरबार नबूवत में, कहा या रसूल अल्लाह आज हमारे घर में ये हुआ। कहा ओहो, अगर तू वो चक्की ना उठाता तो जब तक तू जिंदा रहता वो आटा देती रहती। अल्लाह को अपना बना लो, रिस्क के मसले हल। जिंदगी मौत जहां डॉक्टर फेल, मौत पे कौन काबू पा सकता है। जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, मिस्र में, आप फलस्तीन में। जालिनूस से कहा गया एक फलस्तीन में हकीम आया है जो मुर्दे जिंदा कर देता है। तो जालिनूस ने फौरन कहा किसी तबीब के बस में नहीं है कि मौत से लड़ सके, वो नबी होगा, वो तबीब नहीं हो सकता, वो नबी होगा। जहां तबीब आजिज वहां तुम अल्लाह को तो अपना बनाओ। और उम्मु साहिब फिर पहले मरी और ये बच्चा हजरत उस्मान के जमाने में जाके इसका इंतकाल हुआ। और ये तो सहाबी हैं। आगे चलो, ताबईन का दौर है, ताबईन। और एक ताबई है नबाता बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैहि, यमन से चले हैं जिहाद के लिए, गधे पर सवार हैं, रास्ते में गधा मर गया, सामान उसके ऊपर है, नीचे उतरे, 2 नफल पढ़कर कहा मेरे मौला तू तो बेनियाज है और मैं नियाजमंद हूँ, तू गनी है और मैं मोहताज हूँ, मेरा सफर है, सामान कहाँ से उठाऊं, सफर कहाँ से पूरा करूं, मेरे गधे को जिंदा फरमा। ये कहकर उठे और छड़ी ली और जोर से मारा उसकी पुश्त पर, तो कुल बिइज़्निल्लाह, तो गधा उछल के वो खड़ा हुआ। ये नबाता पहले मरे और वो गधा बाद में मरा। इमाम शाफई ने शाफी फरमाते हैं कि मैंने कूफा की मंडी में उस गधे को बिकते देखा, फरोख्त होते देखा। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, ये निजाम तुम्हारे हक में यूं चलेंगे। ये निजाम अल्लाह तुम्हारे लिए मईशत का निजाम, हिफाजत का निजाम। अबू मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सफर में डाकू पड़ा, अभी मैं था, एक दोस्त मिले, कहा जी डाकुओं ने घेरे में लेकर माल भी लूट लिया, औरतों का जेवर भी उतार लिया, गन पॉइंट पर। मैं रोने के सिवा क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। जब कौम अल्लाह की बाकी हो तो फिर अल्लाह जालिमों के हवाले कर देता है। जब 95% लोग नमाज न पढ़ते हों, 100% नौजवान गाने सुनते हों, 100% नौजवान माँ बाप के नाफरमान हो, जब फैसलाबाद में शराब बेची की जा रही हो, बनाई की जा रही हो, इनामे बॉन्ड बिक भी रहे हों, फरोख्त भी हो रहे हों, और लॉटरी की स्कीमें अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हों, और उसे इनाम के नाम से जुए को हलाल किया जा रहा हो, और जब सूद की इमारतें हर मोहल्ले में खड़ी हुई हों, और अजान पर नमाज की तरफ जाने वाला 100 में 10 से ऊपर आदमी ना हो, जब औरतें बेपर्द होकर कपड़े उतार चुकी हों और पर्दे से बाहर निकल आई हों, और जब मुसलमान की बेटी घुंघरू बांध के नाच रही हो, नचाने वाला भी मुसलमान हो, नाचने वाली भी मुसलमान हो, और उसे पैसा कमाने वाला उसे बिजनेस का नाम दे रहा हो कि हमारी तिजारत है, ये हमारी तिजारत है। जब ये सब कुछ होगा तो फिर मेरा अल्लाह रूठ जाएगा, फिर मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर हमें मनाना पड़ेगा। नहीं मनाएंगे तो ऐसे ही इंसानी शक्ल के दरिंदे हम पे मुसल्लत होंगे, भेड़िए हम पे मुसल्लत होंगे। कहते हैं मोबाइल की खातिर कत्ल करके चला गया तो तुमने उसे इंसान समझा था, वो तो इंसान था ही नहीं। भेड़िया जब बकरी पे वार करता है तो कभी उसको ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, मैं इस बकरी को ना खाऊं। शेर जब हिरनी पे कूदता फाड़ता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसे कुछ ना कहूं। सांप जब किसी नौजवान को डसता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है, मैं इसे न डसूं। जब इंसान इंसानियत से निकलता है तो फिर सांप थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये बड़े अजदहा होते हैं। फिर भेड़िया थोड़ा खून बहाता है, ये बड़े खौफनाक भेड़िए, तुम्हें देखने में वो इंसान नजर आ रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की कसम वो भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए होते हैं, वो शेर होते हैं, वो सांप होते हैं, वो पिच्छू होते हैं जिन्हें फाड़ते हुए, चीरते हुए, डसते हुए ये परवाह नहीं होती है कि इसके बच्चे हैं, ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है। जाओ दफ्तरों में देखो, रिश्वत लेने वाले वो भेड़ियों की शक्ल में बैठे, जाओ अस्पतालों में देखो डॉक्टरों की शक्ल में भेड़िए बैठे हुए, जाओ 8 बाजारों में देखो ताजरों की शक्ल में चीते बैठे हुए, मंडियों में चले जाओ आरतियों की शक्ल में
सांप बैठे हुए, जब सारा बाजार सारे घर सांपों से भरे हों, भेड़ियों से भरे हों, तो भाइयों फिर छोटे भेड़िए पे बड़ा भेड़िया आता है और छोटे शेर पे बड़ा शेर आता है, छोटे सांप को बड़ा सांप निगल जाता है। मैं क्या करूं? मैं जो बता रहा हूं मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अल्लाह की सुना रहा हूं, उसके महबूब की सुना रहा हूं। फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो। फसयकफीकहुमुल्लाह, फसयकफीकहुमुल्लाह, तुम्हें काफी हो जाएगा, तुम्हें काफी हो जाएगा। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, तो मैं तुम्हें काफी नहीं हूं, दुआ वाले बन जाओ। अबू मालिका डाकू पड़ गया, कहने के 2 नफल पढ़ने दे, कहने के मेरा माल ले, मुझे क्यों मारता है? कहा नहीं, तुझे छोड़ दिया तो तू उमर बिन खत्ताब को बताएगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं मारा जाऊंगा, लिहाजा पहले तो मैं कत्ल करूंगा, फिर तेरा माल लूटूंगा। अच्छा तो फिर मुझे 2 नफल पढ़ने दे। कब पढ़ लो? तो मैं 2 नफल पढ़ लो। तो उन्हें 2 नफल पढ़े, सलाम फेरा, उसने नेजा उठाया, उसने कहा या अरहमर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, उसने फिर नेजा उठाया, फिर यूं उसको मारने लगा, फिर आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। फिर उसने दाएं बाएं देखा, कोई जब नेजा उठाए वो कहे या अरहमर राहिमीन। फिर जब उसने तीसरी दफा नेजा उठाया तो एकदम एक सवार सामने आया और उसके हाथ में भी उससे लंबा नेजा, उसने थोड़ा सा यूं किया, वो नेजा उसके सीने के पार हो गया और वो उलट के गिरा और उसके वजूद में आग लग गई और वो जल के राख हो गया। तो अबू मालिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर फरमाया, कौन है? तेरी तुफैल, अल्लाह ने मुझे बचाया। वो कहने लगा मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तूने अल्लाह को पुकारा तो 7वें आसमान में चीखो, और लाखों चीखने वाले तो सुनवाई नहीं है। एक पुकारा था और आसमान के फरिश्ते रो पड़े। कोई इंसान तो हो, कोई इंसान तो हो। हाय 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 हाय। जब तूने या अरहमर राहिमीन कहा तो आसमान के फरिश्तों में चीखो पुकार मच गई। तो मेरे अल्लाह ने कहा कौन इसकी मदद करेगा? तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे भेज। जब उसने पहली दफा तेरे ऊपर नेजा उठाया तो मैं चौथे आसमान पर था। जब दूसरी दफा नेजा उठाया तो मैं पहले आसमान पे पहुंच चुका था। जब तीसरी दफा नेजा उठाया तो मैं तेरे आगे था। और अबू मालिका तेरी तरह जो आहुजारी करके रब को पुकारेगा मैं मदद के लिए आऊंगा।